हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल एक्सेल प्रेप। माय नेम इज अमित कुमार। हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे थे, ठीक है। हम लोग जीपी कंटिन्यू कर रहे थे। जीपी में हम लोग देखे जीपी किसे बोलते हैं। T2/T1 इक्वल टू T3/T2 इक्वल टू T4/T3 इक्वल टू आर कॉमन रेशियो मीन्स डिफरेंस रेशियो सबका सेम आ रहा है, तो ये जीपी कहलाएगा, ठीक है। फिर हम लोग एन टर्म देखे Tn इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस वन। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखे एंड लास्ट से के टर्म फ्रॉम द एंड, उसके लिए टी डैश के इक्वल टू ए आर टू पावर एन माइनस के। फिर इस पे हम लोग क्वेश्चंस देखे और बोले थे हम स्टार्ट करेंगे कंजुगेटिव टर्म्स। ओके, सो हम लोग देखते हैं कंजुगेटिव टर्म्स। हम लोग स्टार्ट करेंगे कंजुगेटिव टर्म्स। If we have three terms, so we assume terms a by r, a and ar. And if we have five terms, so we assume a by r square, a by r, a, ar, ar square. And two terms, so a by r and ar, a by r and ar. And four terms, a by r cube, sorry, a by r cube, a by r cube, a by r, ar, ar cube. So हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, और क्वेश्चन है sum of three conjugative number, sum of three conjugative numbers, sum of three conjugative number in GP equals to 14 and their product equals to 64. So what is the numbers? Okay, so how to solve this? Solution देखते हैं। So first of all we assume numbers a by r, और three numbers क्या बताए थे, a by r, a and ar. So a by r, a and ar, our numbers a by r, a, ar. So product of these numbers 64. So a by r, we have given product, so a by r into a into ar equals to 64. So r to r cancel, a cube equals to 64. So इसलिए a equals to 4 जा 16, 16 4 जा 64. Okay, now sum of three conjugative numbers in GP equals to 14. So a by r plus a plus ar equals to 14. So we'll take a common, 1 by r plus 1 plus r equals to 14. So a equals to 4. So 4 times of
LCM R 1 plus R square equals to 14. 2 2 ja 4, 7 2 ja 14. So 2 times of 1, 2 plus 2 times of R, 2R plus 2 times of R square, 2R square equals to 7 times of R. So 2R squared plus 2R minus 7R plus 2R minus 7R plus 2 equals to 0. So इसलिए 2R square minus 5R plus 2 equals to 0. Solve the equation. 2 2 ja 4. So 2R square minus 4R minus R plus 2 equals to 0. Take R common. R minus 2 minus 1 common. R minus 2 equals to 0. So 2R minus 1 to R minus 2 equals to 0. So 2R minus 1 equals to 0 or minus R minus 2 equals to 0. So R equals to 1 by 2 or R equals to 2. So if we take R equals to 2 and R equals to 1 by 2 and A equals to 4 and A equals to 4. So our terms A by R means 4 by 2 and A and AR 4 into 2 means 4 2 2 ja 4, 2 4 and 8, or A by R 4 divided by 1 by 2 comma A comma AR 4 into 1 by 2, 2 ऊपर जाएगा 4 2 जा 8 4 2. So number equals to 2 4 and 8. Sorry, number equals to 2 4 and 2 4 and 8. Now we'll see summation of sum of n terms in GP. Sum of n terms in geometric progression. We have Sn equals to A plus AR plus AR square plus AR cube plus dot dot AR to the power n minus 1. Now multiply both sides R times of Sn, so equals to A into R. इसमें R मल्टीप्लाई किया इधर भी R मल्टीप्लाई होगा तो AR इसके सामने लिख देते हैं, तो 8 में R मल्टीप्लाई कर दिए तो AR आ जाएगा, फिर इस AR में R मल्टीप्लाई कर दिए तो AR स्क्वायर आ जाएगा, तो वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे AR क्यूब आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई करते चलेंगे लास्ट में यहाँ पे AR टू द पावर n माइनस 1 होगा जब AR टू पावर n माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके बाद जो आएगा उसमें जब इसमें R मल्टीप्लाई करोगे तो AR टू पावर n माइनस 1 इंटू R, AR टू पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, बच जाएगा AR टू द पावर n. नाउ अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, सभी टर्म में अब माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा एस एन माइनस आर टाइम्स ऑफ एस एन इक्वल टू ये टर्म कैंसिल 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 कैंसिल, बच जाएगा यहाँ, तो ठीक है, तो बच जाएगा ए माइनस ए आर टू पावर एन. सो एस एन कॉमन तो 1 माइनस आर इक्वल टू ए कॉमन तो 1 माइनस आर टू पावर एन. तो इसलिए एस एन इक्वल टू a into 1 minus r to the power n divide by 1 minus r, और a into r to the power n minus 1 divide by r minus 1. Take common minus 1 in numerator and denominator. So our formula Sn equals to a r to power n minus a into 1 minus r to power n divided by 1 minus r, या फिर a into r to power n minus 1 divided by r minus 1.
हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 अप टू 20th टर्म। सेकेंड क्वेश्चन 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 to the power 15। Solution of first question. In first, a equals to 1, r equals to 2 by 1, 2. So S20 equals to S20 equals to up to 20th term means S20. S20 equals to a into 1 minus a into r to power n minus 1 by r minus 1. So equals to a 1 into 2 to the power 20 minus 1 divided by 2 minus 1. So 2 to the power 20 minus 1 by 1 equals to 2 to the power 20. This is our answer. And second question, a equals to 1, r equals to 2 and l equals to 2 to the power 15, last term. So इससे हम लोग क्या करेंगे, n निकाल लेंगे। तो l equals to क्या होता है, l a r to the power n minus 1 equals to 2 to the power 15. So a का वैल्यू 1 into r 2 to the power n minus 1 equals to 2 to the power 15. So इसको सोल्व कर देंगे, 2 to the power n minus 1 equals to 2 to the power 15, तो n minus 1 equals to 15. So n equals to 15 plus 1, 16. So we have to find S16. Sn equals to A into R 2 to the power 16 minus 1 divided by R minus 1. 2 to the power 16 minus 1 by 1 equals to 2 to the power 16 minus 1. This is our answer. Okay. हम लोग हाँ एक सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज है हमारे पास जिसको हम लोग रिड्यूस करके जीपी बनाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखो मेंस में तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा, इस टॉपिक के नाम पर लिख देते हैं। ऐसा क्वेश्चन मेंस में डायरेक्ट आता है, सीरीज reducible to GP। क्वेश्चन है find sum of following series। Find sum of following series। First 9 plus 99 plus 999 plus 9999 plus up to n terms, up to n terms। Second 1 plus 11 plus 111 plus 1111 plus up to n terms। Solution first, here 9 plus 99 plus 999 plus up to n terms। सो हम 9 को लिख सकते हैं 10 minus 1, 10 minus 1 plus 99 को लिख सकते हैं 100 minus 1 plus 999 को लिख सकते हैं 1000 minus 1। ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम अलग अलग दोनों को लिख देते हैं 10 plus 100 plus 1000 एक साथ up to n terms, up to n terms।
एंड माइनस माइनस कॉमन लेंगे, बचेगा 1 1 1 1 अप टू एन टर्म्स, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स। तो देखो तब ये जीपी में बन गया 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब। तब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ए इंटू आर टू द पावर, आर हो जाएगा 100 बाय 10, 110 आर टू पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1, और माइनस 1 1 1 1 अप टू एन टर्म्स, एन टाइम्स ऑफ 1, तो हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 10 माइनस 1, 9 माइनस n। यही हमारा आंसर हो गया, 10 बाई 9 टाइम्स ऑफ 10 पावर n माइनस 1। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसी को लिख ऐसे अच्छे से, 10 बाई 9 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। That is our answer for second question। 1 plus 1 1 plus 1 1 1, 1 plus 1 1 plus 1 1 1 plus 2 n terms। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 बाई 9 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो 9 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई 9 बाहर, और 9 मल्टीप्लाई कर दो तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू n टर्म्स। और अभी हम इसे सोल्व किए हैं, 9 प्लस 9 9 प्लस 9, देखो तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई 9 टाइम्स ऑफ, इसका भी सोल्यूशन आया 10 बाई 9 टाइम्स ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 1 माइनस n। तो ये हमारा आंसर हो गया, 1 बाई 9 टाइम्स ऑफ 10 पावर 10 बाई 9 इंटू 10 पावर n माइनस 1 माइनस n। ऐसे इसको कहते हैं रिड्यूसिबल, सीरीज रिड्यूसिबल टू जीपी। पहले हम लोग जीपी में बनाएंगे फिर इसे सॉल्व कर देंगे, ओके। ऐसा क्वेश्चन जहां भी मिले पहले जीपी में कन्वर्ट करना फिर सॉल्व करना। अब हम लोग देखेंगे इनफिनाइट जीपी। इनफिनाइट जीपी, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू इन्फिनिटी। एस एन इक्वल्स टू a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r। So s infinity equals to a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r, where 1 minus r, where n tends to infinity, okay, infinity तक है, ठीक है। So let mod r less than 1, so r to the power n equals to 0। जब 1 से कम होता है कोई वैल्यू और उसका पावर इन्फिनिटिव करेंगे तो वो 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा एस इन्फिनिटिव हो जाएगा, एस इन्फिनिटिव इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर टू पावर n मीन्स 0, r 0 डिवाइड बाई 1 माइनस r, तो हमारा आंसर हो जाएगा a डिवाइड बाई 1 माइनस r। सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इन्फिनिटिव इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 1 माइनस r वेयर mod r लेस देन 1। यहाँ पे एक नोट आपको बताते हैं, जब n टेंस टू इन्फिनिटिव होता है तो मॉड a का वैल्यू लेस देन 1, इफ मॉड a का वैल्यू लेस देन 1 देन a टू द पावर n टेंस टू 0, एंड इफ a greater than 1 then a to the power n टेंस टू इन्फिनिटी, ओके। इसमें हम लोग एक दो क्वेश्चंस देखते हैं।
1 plus x square plus x cube up to infinity equals to solution s infinity equals to a का वैल्यू 1, a divided by 1 minus r, oh sorry, in question given, and mod of x less than 1. So mod of x less than 1, तो a 1 divided by 1 minus r x, तो 1 by 1 minus x our answer. Another question, if mod x less than 1 and 1 plus x square plus x cube plus up to infinity equals to 10, so x equals to what? Solution s infinity equals to a by 1 minus r equals to value of a 1 divided by 1 minus r x by 1 x. So s infinity equals to 10, we have given s 10, so 10 equals to 1 by 1 minus x, by multiplying 10 minus 10x equals to 1, so 10 minus 1 equals to 9, 10x, sorry, 10x, so 10x equals to 10 minus 1 9, तो इसलिए x equals to 9 by 10, 9 by। सो ऐसे ही करके हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस तुम लोग देख लो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लेना, मेंस का, मेंस में जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा उसको लगा के देखना। सो जीपी का भी यहाँ तक में हमारा जीपी कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हार्मोनिक प्रोग्रेशन एचपी स्टार्ट करेंगे। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एचपी देखेंगे, जीपी तक हमारा कंप्लीट हो गया। और किसी को कोई भी डाउट हो तो हमारा इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम लोग वहां से ज्वाइन करके टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे वहां पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो ठीक है। तो आज का लेक्चर अपना यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।